Hello, people. Good evening. Am I audible to all of you? Are we good to go, people? Yes, sir. Okay. So you can see me and you can see the sheet, right? So today's agenda is that we will complete all the questions that are there in this. Last time we had finished only 10 questions. Today we will complete the other 10 quickly, and then we will take only pronouns. So pronouns and subject verb agreement are the two most common errors. And if some time is left, then we will take the tenses as well. So then we finish conceptually every major topic. Okay. So as you see here on the screen, people, last time we had done the 10th question. I want people to try the 11th and 12th question and tell me the sentence in which you have the subject verb agreement error. Kutch district, also spelled as Kutch, is a district of Gujarat state in Western India. So everything seems to be fine, right? In this, nothing seems to be wrong. Kutch literally means something which intermittently. Yes, is this fine or is there any error in this? Hmm? Is there any error here? Kutch literally means something which intermittently. What is intermittently, by the way? What is the meaning of the word intermittently? Anyone? So in breaks. Okay, yes, irregularly. So intermittent internet connection means there has been irregular connection. Sometimes it goes, sometimes it comes. And so Kutch literally means something which intermittently becomes, right? Yes. I will tell you why now. Whenever you have words like which, who, that, okay, which, who, that, particularly these three things, these refer to what has come immediately before them. So when I say that Kutch means something which, so now you might wonder which has or which have. Now this which refers to what? Something. Something is singular or plural. Hmm? I had told you once that if a pronoun, its number is not known to us, it should be treated as singular. So something is singular and therefore this has to be singular. That's why most of us would say Kutch means something which has become wet and dry. Kutch means something which has, H-A-S, has become wet and dry. Are we clear now? So how do you make it? You say Kutch district is a district of Gujarat state in Western India. Kutch literally means something which has become wet and dry. The district had a population of two, I 20 lakh 92,371 and whatever it is. Okay? So B is the error. What about the 12th one? Can anyone see the error in the 12th question? First one. Okay, the rich know not how the poor live. So you feel that this should be a knows not. Is this rich a particular individual or is this the people who are rich? People who are rich. Did you understand this difference? When you say that the rich, so again, this is slightly different from the conventional subject verb agreement. In the conventional subject verb agreement, we all know that when you put singular, it is singular word. When you put plural, it is plural word. The point is, when you use the word the rich, what do you mean?
Do you mean singularity or do you mean plurality? This is the bone of contention here. So now that some of you might say, so sir, I think the rich means singularity, and some of us might say the rich is plurality. But do we have anything here given to us? Had it been the rich man or the rich neighbor, then I would have said, okay, it means singular. But if nothing is given, then what would you assume it to be? Now, this is where it becomes interesting. When nothing is given, it means it refers to people. So when you say the rich know not how the poor live, you basically mean to say the rich people. It is assumed that it is rich people. So you say the rich know not how the poor live. Okay, that's the reason why it is correct. So sometimes you use article the with an adjective to refer to that kind of people. Okay. Did you understand this? You use article the with adjective without putting anything else to refer to those kind of people, and it is treated as plural. Are we clear, everyone? So the rich Yes, sir. means the rich people. The poor means the poor people. This is how it is used. There is no debate about it. I mean, why you can't say that? Why not people? Why can't we have, let's say, an individual or a group of people collectively? The convention says that if this is the case, then the article the plus the adjective will be taken as a plural entity rather than a single. Okay. So the rich know not how the poor live is correct. Here come the bus. Can I say there is distinct error here? Subject क्या है? The bus है. Singular है. So can I say comes होना चाहिए? Everyone agrees? Therefore, B Yes, has the sir. error. Yes, sir. Is she still interested? So is the देखो एक चीज याद रखना हमेशा. Whenever you put a question mark, you have to put the verb first and then comes the subject. How? Look at this example. When you say, let's say, where are, sorry, you say where you are going. Is this correct? Or where are you going? Is this correct? Which is the correct version? In WhatsApp, I think some of you use this interchangeably. But you have to Second remember, one. yeah, because there is a question mark, it means that I have to put the verb first, subject will come later. Are we clear, everyone? So here similar thing has happened. There's a question mark in both the cases. So the verb has come first, the subject has come later. The verb has come first, the subject has come later. Are we clear to, is it clear to everyone? Okay. In question mark, always understand that the verb comes first and then the subject comes. You take any sentence. So if you say कि भाई कब आ रहे हो वापस, when will you coming back? When will you come back? When are you coming back? Are first and then you. Will first and then the others. So question mark, the verb will come first and then the subject. This is a normal rule and you have to follow it. In the exam, they might change this. You have to be alert because we ourselves make these kind of mistakes in daily conversation. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं without wasting time. Take 13, 14, 15, all the three questions. Easy question, so you will easily spot the error in the subject verb agreement. Okay, 13. Can I say 13th one is a very easy question? You can easily spot the error. The 1819 run of Kutch earthquake occurred at about 1845 to 1850 local time on 16 June.
The earthquake caused an area of subsidence that formed the Sindri Lake. Maximum displacement during the earthquake are estimated. Now, immediately you realize that something is not in place. That's the reason why subject verb agreement, when it is not in the shape, it immediately strikes as error. Maximum displacement. The displacement is the subject. It is singular and therefore it has to be singular. Is estimated at. Is estimated at is the correct way. So we need is here and therefore C is the right answer. The most obvious topographic effect of this earthquake was the formation of a ridge. Now, please understand, people, that one common thing that is tested in almost all exams is the difference between effect and affect. I have been always highlighting this. Affect is a verb. Okay, it's a verb, and effect is a noun. So if you want to check it, you simply replace the word effect with consequence, and you will see whether it makes sense or not. If it makes sense, then it is correct. If it doesn't make sense, it is not correct. Example, the most obvious topographic consequence of this. Can I say it makes sense if I replace this with consequence? Everyone? The most obvious topographic effect of this earthquake was the formation of a ridge. The most obvious topographic consequence of this earthquake was something. So it makes perfect sense to me. That means this is definitely correct. Now let me use the A part of it. The tragedy affected all of us. Can you use the word consequence here? No, it doesn't make sense because this has come as a verb. If you try to replace a verb with a noun, it won't make sense. You will not be able to do that. Correct? So whenever you see E, it means it is a consequence. When you see A, it is a action. It means influence, right? So your CUT score affects your selection. So you would say affects means influences, right? So always understand that E is a consequence and A is a verb, and that is how it is always. Clear to everyone? So this is a confusing word. Sometimes it comes in grammar and vocabulary both. 14th का आंसर क्या होगा? The World Bank Group is a family of 5 international organizations. Can I say that because this is a group, we can say is correct. यहाँ पे correct है. Nothing is wrong with it. Yes, sir. Right? Yes, sir. The World Bank's activities focuses on. Is there anything wrong with this? Focus. Activities है ना. देखो, World Bank is not the subject. The subject is World Bank's activities. For example, my neighbor's sons are good for nothing. Okay. So if you have used are, it is because the focus of the sentence is sons. This is a kind of a adjective. My neighbor's sons. That means the focus of the sentence or the noun phrase is the word sons. Now, not my neighbors. ये तो possessive की तरह आ गया. This is what we call as a determiner. It's just like my sons or your sons or their sons. All these are determiner because the noun has come after. So all these are acting like adjective. This is also acting like adjective. So the World Bank Group is a family of 5 international organizations. The World Bank's activities focus hoga. Therefore, B is the answer. The IBRD and IDA provide loans. Why provide? Anyone? Why have we used provide and not provides? Because there are two entities. One is IBRD, which is entity 1. The other is IDA, which is entity 2. So these both entities are basically what we call as entity 1 and 2. They make plural. ठीक है, अगर ये खाली वर्ल्ड बैंक होता तो आप क्या बोलते? The World Bank provides loans at preferential rates to member countries. The bank's stated mission is .r is to achieve the twin goals of ending extreme poverty and building shared prosperity.
Clear to everyone? इसका आंसर क्या है? 15th. Please share the answers. दूसरा ऊपर कर दो। Sir, B. Okay, B. someone said A. B. सर ये हैश होगा Sir, Okay. institutions के साथ have आना चाहिए. Okay. A, लेकिन A तो बोल रहा है the World Bank Institute is the capacity development branch of the World Bank. So the World Bank Institute might be a name of an organization, and because it is singular, I cannot do anything with it. अच्छा. The IBRDI has 189 member governments, and the other institutions. देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि we have a classic case of एक मिनट देखो we have a classic case of two things happening here with us. The IBRD has why? Because this is singular. ठीक है? The IBRD has 189 member governments. Can I say idea one has ended here? Agree? The idea one has ended here. ठीक है? Now the idea two starts, and therefore you have put a conjunction and a comma. And this is the new idea. Other institutions, तो यहाँ पे other institutions plural है तो यहाँ पे have होना चाहिए. So एक ही सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग आइडियाज हैं. आइडियाज का मीन मतलब है क्लॉजेस. द सेम सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है? एंड द वन दैट हैज द प्लूरल सब्जेक्ट will have a plural verb. So the other institutions have between 153 and 184. So the IBRD has 189 member governments, and the other institutions have between 153 and 184. The activities of the IFCN MEGA include, because the activities is plural, and therefore you have used the word include. Traditionally, the bank president has been a US citizen. So everything makes sense except A. Sorry, everything makes sense except B. Clear to all of you, everyone? Subject verb agreement कैसे पकड़ में आता है? ठीक है? So let's go to the next 5 questions, and then we will take the pronouns after this pronouns. Chalo. Please take 16, 17, 18 and give me your answers. सर D. D. Girl. Okay. Sir, D. Everyone feels D. 16 का. Each of the girls sings well. देखो ये भी बहुत कॉमन एरर है. Many people think that ये जो they feel that each of the girls इसको सही बोलते हैं वो. But please understand that in this particular question, the subject is not girls, the subject is each. जैसे मैं कहता हूं each of the subjects, तो आप बोलो is difficult. Don't use the word are difficult. Many of us have the tendency to use are because we see the word subjects here. So our sentence starts here. मतलब wrongly. The subjects are difficult. आप ऐसा बोलते हो, आप each को भूल जाते हो. तो अगर subjects are difficult, तो each की जरूरत ही नहीं ना. फिर इसको लिखा क्यों आपने? The subjects are difficult बोलो. अगर आपने each लगा दिया, इसका मतलब आपने ये कहना है कि भाई एक एक को पकड़ के you are choosing every one subject and you are taking that into account. So each of the subjects is difficult हो जाएगा. समझ में आया? दोनों में काफी फर्क है. Clear to everyone? So this is definitely the error, and therefore D is the answer. Each and every student should get the credit. Each and every is always singular. यहाँ पे तो should आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, but अगर suppose ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप क्या बोलोगे? Each and every student has taken pains to finish his task.
So has why? Because each and every is singular. She is not popular among the students. Time and tide wait for no man. तो wait क्यों? Because time and tide are two entities. ठीक है, ये थोड़ा लोग डिबेट करते रहते हैं, बट सही है. So D is the answer. 17 का क्या है? Indonesia is a presidential republic with an elected legislature. So Indonesia is a country. It is a word, makes sense. The country's capital, Jakarta, is the world's second most populous urban area. Now it makes perfect sense. Why? The country's capital. Capital जो है singular है, and that's why is makes sense. The Indonesian archipelago have been a valuable. Okay, the concept of Indonesia as a nation state emerged. So there is no error except possible is DC. You might wonder, हाँ, you might wonder कि Indonesian archipelago have क्यों नहीं है? What is archipelago? Anyone? Sir, a group of islands. हाँ, archipelago is a group of islands. So because it is a group of islands, इसको हमको has करना चाहिए. That's why archipelago, the group, it's a collective noun in itself. जैसे आपने कहा कि the crowd has dispersed. तो जब आप crowd use करते हो तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि ये collective है. आपको पता है कि ये collective है. It's a collection of people. So the crowd has dispersed is nothing wrong. Similarly, a collection of islands is called archipelago and should be treated as singular. The Indonesian archipelago has been a valuable region for trade since the 7th century. ठीक है, चलो सर 18th का, either my father or my brothers are coming today. So this is correct. Why? As I told you last time, if you remember, I had told you that either and or also act as a conjunction when they come in a pair. When they come in pair, right? So either के साथ और आ गया है, ठीक है? Either my father or my brothers, correct? So now in this case, you have a very fascinating scenario. Either has taken singular or has taken plural. So what would you do? You will always go by the noun that is closest to the verb. तो R के पास में कौन है? Brothers है ना? तो ये R सही है. अगर ये नहीं होता, यहां होता, इसको यहां होता, तो ये is हो जाता. सबको समझ में आया? Everyone is clear about this rule? Yes. This is used in either or, neither nor, and or. ठीक है, either or, neither nor, और में यूज होता है ये. Neither my son nor my wives, क्या होगा इसका आंसर? Is it correct? Care about me. हाँ, so neither my son nor my wives care about me. तो ये care आना चाहिए. Why? Because wives is plural. That's the reason. So B is the answer. Are they interested in taking admission? Are verb पहले आ गया, फिर subject आया, then the main verb has come. This is the helping verb, subject, main verb. Everything goes along smoothly. Question mark है. That's why this construction is correct. These are common issues found everywhere. These are. So nothing wrong. Okay, let's go and take the. सर ये वाला वापस 16th बता में दीजिए. कौन सा? 18 का ए में क्यों सही है? 18 का ए क्यों सही है? ब्रदर्स सही. इस होगा हाँ या ब्रदर, होगा? हाँ सही है, सही है. 16 में क्या पूछा था किसी ने? सर 16th में गेट इसलिए है ना क्योंकि साथ में उसकी भोडाल है. हाँ ये शुड है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गेट है, तो अभी इसमें गेट्स का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शुड जो Auxiliary है, verb means हाँ हेल्पिंग मतलब इट्स बेसिकली. So when you have auxiliary, so how many types of auxiliary verb you have? Shall, should, will, would, can, could, may, might. Might. और क्या हो जाएगा? Must. सर तो ये तो भोडाल सी हो गए. हाँ ये तो भोडाल्स ही हो गए ना. हाँ, ये मॉडल्स ही है ना. ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स आर द सेम. ओके सर. तो एक ही चीज है, अलग अलग नाम से यूज करते हैं. तो जब ये आते हैं तो ये हमेशा अकेले नहीं आते, ये साथ में लेके आते हैं एक मेन वर्ब को. समझ में आया? आप इनमें से किसको भी यूज करते हैं अगर, तो आप इनको अकेले कभी नहीं यूज करेंगे. जैसे आपने ऑट टू यूज किया, तो आप कैसे यूज करोगे? यू ऑट टू रेस्पेक्ट.
सो ought to with some sort of, so ये infinitive बन जाता है, you ought not to come at this time. So इसमें होता क्या है ना कि इन सब के अंदर you'll always have something which is acting like a main verb. जैसे यहाँ पर है each and every student should है, main verb get है, but should is basically the auxiliary verb. अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूरा खत्म हो जाता है. There is no need of subject verb agreement in this case. Why? Because everything remains as it is. She should get credit, he should get credit, they should get credit, I should get credit, you should get credit. Should get हमेशा आ गया, चाहे वो I हो, we हो, you हो, they हो, कोई फर्क नहीं पड़ा. Are you following this? Yes, sir. तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हम यूज करते हैं वो कब एप्लीकेबल है, जब आप यूजुअली प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो या पास्ट टेंस. फ्यूचर में एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर में सब में विल लग जाता है. और मॉडल्स में भी वो एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज मॉडल्स के आने की वजह से वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बनता ही नहीं है. देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो आप ये मत करना कि मैकेनिकल मोड में चले जाओ, ईच एंड एवरी सिंगुलर है तो गेट्स लगा दो सीधा आंख बंद करके. लोग ऐसा करते हैं, रूल याद कर लिया, पागलों में तो रूल अप्लाई करते हैं. ईच एंड एवरी सिंगुलर है, गेट्स लगा दो. अरे भैया पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गेट द क्रेडिट. अब अभी मैं इसको निकाल देता हूं, अब क्या होगा इसका आंसर? Gets. हाँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स द क्रेडिट. नाउ यू हैव मेड अ चेंज. You have removed the word should, and because you remove the word should, this becomes the main verb, and now it will have that subject verb impact. Are we clear, everyone? Yes, sir. है ना? तो ध्यान सर ये देना. जरूरी तो नहीं है ना कि वो जो ग्रुप के साथ में ही आएगा. तो मान लो जैसे हम कह रहे थे कि क्या may क्या he क्या live long. may ही. Live long. हाँ, तो may जो है ना, अब ये लिव के चाहे वो साथ में नहीं आया तो तब भी चाहे वो मतलब उसका ब्रेक हो गया ना, एप्लीकेशन तो कोई होगी दिक्कत ना. नहीं. हाँ, ब्रेक हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं. कई बार हाँ ब्रेक हो जी, जाता है. ठीक है सर. हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मे आई कम इन. तो एक डिजायर, एक परमिशन है और एक डिजायर है. तो हम लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू. तो वी हैव गॉड ब्लेस यू बोलते हैं. कई बार बोला है आपने, व्हाई डोंट यू से गॉड ब्लेसेस यू, है ना? आप लोग क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू. तो आप देखोगे तो बोलोगे सर गॉड इज सब्जेक्ट, ब्लेस इज वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट, गॉड इज सिंगुलर, तो ये ब्लेसेस हो जाएगा. बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप गॉड ब्लेस यू बोलते हो तो मे छुपा हुआ होता है, इसलिए इसको टच करता है. समझ में आया? ओके सर. सर एक बार 18 का ए वापस बता दीजिए. 18th का ए, ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स. तो ये ब्रदर्स है ना, किसके बगल में है? ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा. ये प्लूरल है, तो ये होना चाहिए ना प्लूरल. तो अगर वो सिंगलर होता तो यहाँ पे एस आता. हाँ, बगल और माय वाला जो ब्रदर है इज. उस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता. ओके. ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, इस पे गॉट डिपेंड करता है. गॉट इट सर. ठीक है, तो ध्यान देना. ये तो ये तीन चीज में होता है, ईदर और, नीदर नॉर, और में होता है. लास्ट टू केयर्स की क्वेश्चंस. जगह क्या आएगा सर? केयर आ जाएगा ना, ये निकल जाएगा ना. नीदर माई सन ओके नॉर ओके माई सर. वाइफ केयर अबाउट मी. माई वाइफ केयर अबाउट मी, सो बहुत ध्यान देती हैं. टेक द लास्ट टू एंड गिव योर आंसर्स. देखो, इससे पता है क्या होता है, आपको समझ में आता है कि एरर स्पॉटिंग कैसे करनी है.
19 का क्या होगा? Nutmeg is the spice C. made by grinding the seed of the fragment nutmeg tree. The seeds are dried gradually in the sun over a period of 6 to 8 weeks. The first harvest of nutmeg trees take होगा ना, takes होगा ना, Yes, sir. takes होगा ना, क्योंकि the first harvest है और harvest तो singular है ना. C is the error, no doubt about it. The trees plural है तो reach ही होगा, और क्या होगा? Nutmeg is है. The seeds are dried, so everything works perfect. The Caribbean is a region of the Americas. So the Caribbean जो है ये singular ही होता है. But islands of the Caribbean क्या हो जाएगा? R हो Plural. जाएगा, plural हो जाएगा, because islands is always plural. The region takes its name from. ठीक है, I think it has very simple question. So there is no need to worry much about it. सर Now what? 19th के ए में हाँ, 19th के A में सीड की जगह जो है वो सीड्स होता तो ज्यादा बेटर ना रहता। देखो उसमें है ना, क्या होता है कि नटमेज इज द स्पाइस मेड बाय ग्राइंडिंग द सीड ऑफ द फ्रेगमेंट. देखो, अब सीड्स भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है. तो जब आप ये लिखते हो बाय ग्राइंडिंग द सीड्स, दैट मीन्स आपने बहुत सारे सीड्स होते होंगे उसके, एक को ग्राइंड करना बेवकूफी होती होगी, ऐसा समझ में आ रहा है. बट हो सकता है कि सीड बहुत बड़ा हो और एक एक करके ग्राइंड होता होगा, तो इट इज अप टू यू. इसको बोलते हैं कि बोथ द वर्जन्स वुड बी इक्वली करेक्ट. जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, लोग इसको लेके, देखो हम पता है गलती ग्रामर में क्यों करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसको ऐसा होना चाहिए, बट बोथ कुड बी करेक्ट. आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट्स से lions are dangerous animals. ठीक है, दिस इज वर्जन 1. A lion is a dangerous animal, correct? So both the versions can be used by people while expressing their right, whatever they are doing. So lions are dangerous animals. अब इसमें फर्क क्या है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये सॉरी, ये अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल. तो अ लायन है तो आपने अ एनिमल एंड सॉरी इज अ डेंजरस एनिमल लिखा बिकॉज अ लायन है, या लायन है तो आपने एनिमल्स लिखा. ये सही है ग्रामेटिकल. अगर आप ये कहोगे लायंस आर अ डेंजरस एनिमल, तब गलत हो जाएगा, बिकॉज लायंस प्लूरल है, तो फिर आप इसको भी प्लूरल करो. अब ये बताओ मुझे कि मान लो दोनों सही हैं, तो आप बोलो कि सर कौन सा यूज करें. दोनों आप यूज कर सकते हो. लायंस आर डेंजरस बेसिकली मींस लायंस एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, लायंस होते हैं. A lion means what? You are taking one as a representative of the entire community. Did you understand? You are taking one as a representative of the entire community. That is also correct. इसलिए आपने कहा ना, a friend in need, है ना, is a friend indeed. तो a friend मीन्स कोई भी दोस्त हो सकता है. इसको आप फ्रेंड्स कर दोगे तो भी ऐसा नहीं गलत हो जाएगा. फ्रेंड्स इन नीड आर फ्रेंड्स इन नीड. So a friend is an example among all the friends. Any random example. Friends is basically friends everywhere across the world, across all time and space. Are we clear now? तो इसको आप चाहे 10 सीट करो चाहे 10 सीट्स ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 सीट 10 सीट हो. ओके सर। तो कभी भी ये देखना कि द सेंटेंस इज इट इनहेरेंटली करेक्ट. अगर ग्रामेटिकल एरर है तो फिर एरर है. अगर आप उसको किसी और तरीके से भी लिख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एरर है. That is the reason why many people they end up even marking correct sentences as incorrect, because they think that there is a version and this version is better than your. That's why you have to go by the rules. Look at subject verb agreement, look at the pronouns, look at the tense, look at the preposition. Prepositions are hard to identify क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि इट इज वेरी डिसेप्टिव. मतलब आपको लगेगा अच्छा ऑफ है, बाय है, फॉर है, फ्रॉम है, यू फील किया सब सही लग रहा है मेरे को. तो उसके अंदर के जो एरर्स होते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है. और ऐसे एरर्स बहुत सारे हैं जो आपको क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि टीचरों को काम धंधा है नहीं. उनको लगता है कि भाई प्रिपोजिशन खूब सारा डाल दो बच्चे के ऊपर और बच्चे को बोलोगे तो किसी काम का नहीं है. तो हमारे इंडियन एग्जाम्स में क्या होता है ना कि दे डोंट टेस्ट योर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, दे स्टार्ट टेस्टिंग योर प्रिपोजिशनल एरर्स.
तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा वाहियात प्रपोजन उठा करके उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, बोलेंगे चलो बता एरर कहाँ पर है. I feel that you cannot prepare for these kind of questions. To be very honest, you cannot prepare. Even if you tomorrow start solving 500 questions on preposition, आप गलती बार बार करते रहोगे. तो ऐसी चीजों का प्रिपरेशन करना बेवकूफी है, जो आपको लगता है कि 15 दिन प्रिपेयर करने के बाद भी मैं वहीं का वहीं ही रहूंगा. When you have aptitude exams and you have just around less than 1 month left, you should focus on those areas which you can actually improve. सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको समझ में आ गया है. अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब होता ही होता है. कभी कभार 2 सब्जेक्ट वर्ब भी होते हैं. रिलेटिव क्लॉज आएगा तो फिर हो सकता है एक और सब्जेक्ट वर्ब आ जाए, बट ईच टाइम द सब्जेक्ट मैचेस द वर्ब. So you know that I have to follow a certain process while I'm marking the answer, and that helps you spot the error. Now I will take a new lesson for you, and that is pronouns. So pronouns and subject verb agreement are very closely connected in the sense that, अब देखो पहली चीज है, what is the function of a pronoun? कोई मुझे बताएगा क्या काम है प्रोनाउन का? ठीक है, वो नाउन को रिप्लेस करता है, वो मुझे पता है. ठीक है, अ प्रोनाउन विल ऑलवेज रिप्लेस अ नाउन, यूजुअली, नॉट ऑलवेज. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल इन विच अ प्रोनाउन इज नॉट रिप्लेसिंग अ नाउन? पॉसिबल है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. What is the function of a pronoun? A pronoun usually, but not always, replaces a noun, or some might say refers to a noun. ठीक है, a pronoun usually but not always replaces a noun or refers to a noun. ठीक है, if, ये ध्यान दो, हाँ, if the noun is singular, the pronoun is singular. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सबसे बड़ा रूल आपको ध्यान देना है. यहाँ पे बहुत सारे एरर एग्जाम में आते हैं. लोगों को पता ही नहीं, प्रोनाउन प्लूरल है उसके लिए सिंगुलर, नाउन प्लूरल है उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिया है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, एक मिनट, anyways, so when the noun is singular, the pronoun is singular, and opposite vice versa is when the noun is plural, the pronoun is plural. Everywhere. पैराजम्बल्स जो आते हैं ना एग्जाम में, आपको आईटी मैट वालों को पैराजम्बल्स आएगा, सीयूटी वालों को सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा. तो सीयूटी वाला पैराजम्बल्स बड़ा आसान हो जाता है, बट आईपी मैट में हम ये बहुत यूज करते हैं. सिंगुलर नाउन है तो फिर प्रोनाउन जो आ रहा है वो सिंगुलर होना चाहिए, उससे आप सेंटेंसेस को जोड़ देते हो. दैट इज समथिंग वी फॉलो इन मोस्ट ऑफ द पैराजम्बल्स. सो इफ द नाउन इज सिंगुलर द प्रोनाउन इज सिंगुलर, इफ द नाउन इज प्लूरल द प्रोनाउन इज प्लूरल. ठीक है, ये हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं. If you don't follow this, then it is called as grammatical error. Okay. Now the point is, I have said here a pronoun usually but not always replaces a noun. Can there be pronouns which are not replacing a noun? So we enter into the third part of it. The third part is, I will erase this. Okay, I will erase this now. So third part में आते हैं, that pronouns can be categorized into two broad kinds. One is definite pronoun, ठीक है, and the other is indefinite pronoun. ठीक है, ये दो कैटेगरीज के प्रोनाउंस होते हैं. डेफिनेट कैसा है? डेफिनेट है ही, शी, इट, दे,
them, you, mine, yours, etc. Why do I call them definite? क्योंकि जब मैं प्रोनाउन को देखता हूं तो मुझे पता है कि इसके पीछे कोई नाउन बैठा हुआ है. Agree, all of you? I know the noun. I can identify the noun. He is a masculine gender. It is some person we can go and pick. She, we know that it is a female, and I can go and see. It is neutral gender. They is more than one, and there are plural. अब indefinite में क्या होता है? Indefinite pronoun example दे रहा हूं मैं. Indefinite क्या होगा? What do you mean by indefinite, by the way? Anyone? What is the meaning of the word indefinite? Not clear. Not मतलब कोई 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 सर्टेनिटी नहीं है. जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं. आपने कहा everyone. Are you very clear as to whom are you referring to? Is it specifically picking anyone? No, it is not. Even everything. Even somebody. और दूर मत जाओ. नीदर और ईदर हमने किया था अपने उसके अंदर और सब्जेक्ट वर्ब में. इसको मैंने सिंगुलर ट्रीट किया था ना. याद है आपको? परसों की बात है. मैंने कहा था कि नीदर इज गुड. आप दुकान में गए, आपको आपने कहा कि भैया पेन दिखाइए, फाउंटेन पेन, बॉल पेन, विच वन डू यू वांट? आई डोंट वांट. नीदर इज गुड. तो नीदर का मतलब क्या था? ना ये ना वो. ईदर मतलब क्या? या फिर ये या फिर वो, कोई भी हो. सो व्हेन यू यूज दीज काइंड ऑफ प्रोनाउंस, you don't have anything specific in mind, and therefore they are always singular. सबको समझ में आ रहा है? Indefinite pronouns are always singular. कैसे? एग्जाम्पल दूं आपको मैं. Something which is not good. कुछ भी आया होगा यहाँ पर. Can I say which refers to something? Which किसकी बात कर रहा है? Something की. आपने क्या यूज किया? Did you understand? कि आपने is क्यों यूज किया? क्योंकि which जो है वो something की बात कर रहा है. Something सिंगुलर है, इसलिए मैंने is यूज किया है. अगर यहाँ पे दो चीजें होती है ना, Everyone is requested to keep silent. अल्कोहल एंड ड्रग्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ और विच आर अवेलेबल हियर, आर यूज करोगे ना आप. कि विच किसको रेफर कर रहा है? अल्कोहल एंड ड्रग्स दोनों को, इसलिए आर. डिड यू गेट इट पीपल? इज एवरीवन क्लियर? Yes, sir. So indefinite pronouns are always singular. Each is indefinite. वो तो खैर singular है ही. Not indefinite. It is basically referring to only one thing. So that's why. Are we clear now कि indefinite pronouns की varieties क्या होती हैं? Everyone, everything, somebody. हाँ. Everyone is requested to maintain silence, or everyone is ही तो होगा. Easy होगा. आप आर तो कभी बोलते ही नहीं हो. मतलब टीचर्स वगैरह जब वो होते हैं तो आर बोलते हैं. नहीं नहीं भाई, जरा देखना, ध्यान देना. Everyone are requested नहीं, गलत है ये तो. टीचर ने अगर ऐसा बोला तो फिर बहुत गलत है. आपने कभी बोला है क्या एवरीवन आर? नहीं नहीं नहीं, एवरीवन के साथ तो ऐसे ही आता है. इजी आता है वो तो, मतलब लिंग्विस्टिकली आता है. उसको तो लॉजिक की जरूरत भी नहीं है, वो तो मुंह से ऐसे निकलता है. देखो कई बार क्या होता है ना कि जो मुंह से निकलता है वो सही होता है. कई बार, ऐसा नहीं कि हमेशा. अक्सर ऐसा होता है कि जो जो सही सुनाई देता है वो सही होता भी है. अबे फॉर एग्जाम्पल हिंदी लैंग्वेज, नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव स्टॉप्ड लर्निंग हिंदी और स्टडिंग हिंदी, और आपको मालूम पड़ जाता है कि ग्रामेटिकल एरर हो गया यहाँ पे. बिकॉज द लैंग्वेज हैज दैट इडियम टू इट, एंड पीपल हु स्पीक इट इन द नेटिव स्टेट, उनको मालूम पड़ता है कहाँ पे एरर हुआ है. तो अब जब हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं तो वेन एवर वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ऑटोमेटिकली जुबान से सिंगुलर ही आता है.
तो वहां पे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन वहां बनता है जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा, जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स इज डिफिकल्ट। यहाँ पे एरर हो जाएगा एग्जाम में, ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट लोग कर देंगे और भूल जाएंगे कि हम ईच की बात कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट्स की। Yes, sir. ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि भाई प्रोनाउंस के फॉर्मेट क्या होते हैं, बिकॉज ये तो आपने देख लिया कि भाई ठीक है, मतलब ऑल दीज आर the two broad categories of pronouns, but there is a table that I will draw for you, and I will just mention कि ये टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड ये टेबल बेसिकली प्रोनाउंस का सब कुछ है, मतलब इट इज एवरीथिंग ऑन प्रोनाउंस। द टेबल दैट वी वुड बी डूइंग इज एवरीथिंग ऑन प्रोनाउंस। सो आई विल go to the table and I will make the table first for you and then I will discuss all the things. तो प्रोनाउन जो हम पढ़ाता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ प्रोनाउन, उसका मैं एक बहुत बड़ा टेबल बनाता हूँ, उस टेबल सब कुछ याद हो जाता है। तो प्रोनाउंस का जनरली आप देखोगे तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, आपको पता है ये बात। सेकेंड Yes, पर्सन, sir. And third person. थर्ड पर्सन, ना ये तो पढ़ा होगा स्कूल में। तो मुझे बताओ कि हर एक में कौन कौन आएगा। तो हर एक पर्सन का सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, समझ में आया? हर एक का, देयर इज ऑलवेज अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है। सो एक प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, यानी क्या कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन के आएगा। क्या? ये प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही बनता है, ये और कुछ नहीं बनता। और दूसरा होता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है या नहीं पता है? सबको पता है। Yes, sir. जो एक्शन लेता है और जो एक्शन रिसीव करता है, जैसे पापा ने आपको पीटा, सब्जेक्ट कौन था? जिसने मारा। और ऑब्जेक्ट कौन था? जो मार खाया। ठीक है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन ले रहा है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एक पोजेसिव होता है, मतलब समथिंग इज बीइंग पोजेस्ड, दैट्स व्हाई वी यूज दिस प्रोनाउन। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव होता है एक। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो दिखता है प्रोनाउन की तरह, काम करता है एडजेक्टिव का। ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिवल बोलते हैं। कोई लोग एडजेक्टिव बोलता है, कोई लोग खाली प्रोनाउन ही बोलते हैं, बट ये प्रॉपर एडजेक्टिव। आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ ऑल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हमेशा आई होगा, और प्लूरल क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होगा प्लूरल बताओ? वी, B. है ना? सिंगुलर आई होगा और प्लूरल वी होगा। ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में दोनों यू यू होते हैं, सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है ना कि सिंगुलर ही होता है, शी होता है, इट होता है, प्लूरल में दे हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ, यहाँ Yes, तक, sir. यहाँ तक। अब मुझे बोलो सब्जेक्ट बनना है, मैंने कोई एक्शन लिया तो मैं आई यूज करूंगा ना। आई हैव स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन सीयूईटी, वी ऑल हैव डन वेल। अब ऑब्जेक्ट बन जाओ, यानी क्या कि आप एक्शन रिसीव कर रहे हो, तो कहना इसे आई विल बिकम मी। ही स्लैप्ड मी, दे आस्क्ड मी, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं, पूछने वाला कोई और है, मुझसे पूछा जा रहा है। Did you understand? So if I ask a question, I would say I asked. But if I have been asked, then he asked me. तो ये मी हो जाएगा तो ये अस हो जाता है। ये सबसे अच्छा है, हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा,
इट का इट रहेगा और दे का देम हो जाएगा। यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस सर। है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल। एक और चीज, सब्जेक्ट के जो प्रोनाउंस होते हैं उनके लिए हम हु यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम whom यूज करेंगे। यस, और पोजेसिव के लिए whose यूज करेंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? तो आपने कहा कि आई स्लैप्ड माई यंगर ब्रदर। हु स्लैप्ड? आई। whom ऑब्जेक्ट है ना, माई यंगर ब्रदर। आर वी क्लियर नाउ? तो जब भी सब्जेक्ट हु, जब भी हु से क्वेश्चन बनेगा तो आंसर सब्जेक्ट ही देगा। जब क्वेश्चन whom से बनेगा आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट देगा। ये समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सब्जेक्ट हमेशा हु से आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा whom से आएगा। अब एक गलती जो हम करते हैं, मैं उसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। किसी ने खटखट किया तो आपने क्या पूछा? हु इज इट? यही पूछते हो ना? Yes, sir. वो क्या बोलता है? इट्स मी। क्या ये सही है? तो आप बोलते No, हैं सर sir. रोज तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग यार, अब सही गलत क्या जाने। आपने पूछा क्या? हु इज इट। तो क्वेश्चन हु से आया ना, तो आंसर भी यहां से आना चाहिए था। तो कहना ऐसे उसको इट इज आई बोलना चाहिए था। सर हम्म? क्यों ऐसा, मतलब वो आंसर उधर से क्यों आना चाहिए? देखो आंसर इसलिए आना, आंसर वहां से इसलिए आना चाहिए कि रूल ये कहता है इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप। तो क्वेश्चन बोलो हु हैज वन द वर्ल्ड कप, तो आंसर कौन दिया? सब्जेक्ट ने दिया ना। Yes, sir. करेक्ट। India. एक काम करो, बेटर एग्जांपल, इंडिया हैज डिफीटेड पाकिस्तान। हु हैज डिफीटेड हूम? तो हु के India. बदले इंडिया, हूम के बदले पाकिस्तान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारी जो गलती इतनी ज्यादा होने लगी है कि जब कोई बोलता है ना हु इज इट, तो आपको क्या बोलना चाहिए? इट इज आई। ये सही है। इट इज मी जो बोलते हैं वो गलत है, बट वो एक्सेप्टेबल हो गया है। समझ में आया सबको? Yes, sir. अब एक काम करो, आपने किसी को झापड़ मारा, ठीक है, घर में पूछा हु स्लैप्ड, तो आपने क्या कहा? इट इज आई हु स्लैप्ड। करेक्ट? सही बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? Yes, sir. इट इज आई, इट इज मी को अब मी कर दो, इट इज मी हु स्लैप्ड। गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि जब मी आ गया है तो बगल में हु कैसे आएगा? हु आना चाहिए था। डिड यू अंडरस्टैंड? सर तो हु वाला कैसे बनता है क्वेश्चन? मतलब हु जब है तो वो इनमें से आएगा कुछ ना कुछ। समझ में आया? जब आप हु सर वो यूज समझ करते, आ गया, हाँ, वो समझ आ गया, लेकिन हु वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु पता है कैसे आएगा? देखो सिंपल सी बात है, आई मेट हिम इन IIT। हु मेट आई, whom I. him। whom से आया ना क्वेश्चन, फट से ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया आकर के। हु से आया क्वेश्चन तो फट से सब्जेक्ट खड़ा हो गया आकर के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये फॉलो Yes, करो, sir. हमेशा सटीक बैठता है। अगर क्वेश्चन हु से आ रहा है तो सब्जेक्ट ही आंसर देगा और कोई आंसर नहीं देगा। आपने पूछा हु विल विन द मैच, तो जो पहला आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा ना। हु विल विन द मैच? इंडिया विल विन द मैच। इंडिया विल डिफीट whom? इंडिया विल डिफीट whom?
तो आपने क्या कहा, इंडिया विल डिफीट पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट बन गया ना? हाँ या ना? Yes, sir. इंडिया विल डिफीट whom? तो आपने कहा इंडिया विल डिफीट पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट बना ना, क्योंकि whom से क्वेश्चन आया था। डिड वी गेट इट? तो इसी को फॉलो करो, ये 100% बैठेगा, कभी गलत होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये माइन बन जाएगा, ये आवर्स बन जाएगा, है कि नहीं? आवर्स बोलते हैं, आवर्स नहीं बोलते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज आवर्स, दिस बुक इज योर, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हर्स, दिस बुक इज दियर्स। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, मतलब क्या? इट का पोजेसिव नहीं होता, पोजेसिव नहीं होता है, एडजेक्टिवल होता है, इट्स हो जाता है वो। आई विल टेल यू हाउ। रिफ्लेक्सिव का माई सेल्फ हो जाएगा, ये बन जाएगा आर सेल्फ्स, ये बन जाएगा योर सेल्फ, और ये बन जाएगा योर सेल्फ्स, ये बन जाएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। ठीक है, और अभी एडजेक्टिवल क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बगल में आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। आप कभी माई यूज करते हो अकेले? कभी यूज नहीं किया आपने। आपने माई नहीं यूज किया है अकेले, आपने माई कभी नहीं किया अकेले। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? Yes, sir. जैसे आपने कहा कि मैं कहा हुज बुक इज दिस, तो आपने हाथ उठाया, कहा सर दिस बुक इज माइन। माइन तो अकेले आ गया ना। अगर आप माई करते तो आप क्या बोलते? सर दिस इज माई बुक। कैन आई से माई विल ऑलवेज टेक समथिंग, आवर विल टेक समथिंग, योर विल टेक समथिंग, योर विल टेक समथिंग, इट्स विल टेक समथिंग, हिज विल टेक समथिंग, हर विल टेक समथिंग, एंड देयर विल टेक समथिंग। फर्क क्या है? theirs is a possessive, there is adjectival। क्लियर होगा या नहीं हुआ? theirs प्योर पोजेसिव है, देयर एडजेक्टिवल है, यानी कोई ना कोई नाउन लेके आएगा। ये सब नाउन लेके आएंगे। अब क्लियर हो गया? द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, तो ये इट्स जो है ना, ये पोजेसिव वाला है। इट्स टेल पोजेसिव एडजेक्टिवल वाला है, यहां पे ब्लैंक हो जाता है, यहां पे कोई वर्ड नहीं आता इसका। समझ में आ गया सबको ये एडजेक्टिवल कैसे यूज होता है? Possessive sir होता क्या है? पोजेसिव पता है क्या होता है? जब हम लिखते हैं ना कि भाई, जैसे कि आपने कहा कि अक्षय बुक, तो अक्षय बुक जो है, बुक तो नाउन हो गया है, कैन आई से पोजेसिव है ना? पोजेसिव इसको बोलते हैं, ये पोजेसिव है। तो प्रोनाउन से रिप्लेस हो सकता है। ये कैसे? अक्षय को आपने हिज से रिप्लेस कर लिया, सामने ही खड़ा था ना आपके, तो आपने अक्षय के बदले क्या कहा? दिस इज हिज बुक। क्लियर हुआ? तो ये Okay, पोजेसिव sir. है और ये पोजेसिव एडजेक्टिवल है। अब आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिवल क्यों है? क्योंकि ये बुक है इसलिए। आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, आप ऐसा लिखो, दिस इज हिज, दैट इज माइन। ये प्योर पोजेसिव है, ये प्योर पोजेसिव है। और अगर मैं हिज बुक लिख दूं तो ये बन जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिवल, और फिर ये माइन को माई करना पड़ेगा। पोजेसिव एडजेक्टिवल, समझ में आया? प्योर पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिवल। ये प्योर पोजेसिव है, ये पोजेसिव एडजेक्टिवल है। क्लियर एवरीवन? एडजेक्टिव बन के आएगा, ये अकेला आता है। आर वी क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? हम्म
Yes, sir. सिंपल है, एक में पोजेसिव मतलब अकेला आएगा, एक में पोजेसिव कोई ना कोई नाउन लेके आएगा। तो आपने क्या बोला, दिस इज हिज। भाई आप लोग सब खड़े हो तो पूछा भाई ये फोन किसका है, तो दिस इज अक्षय's बोल सकते थे ना आप, दिस इज अक्षय's और दिस इज हिज, या फिर दिस इज अक्षय's फोन, दिस इज हिज फोन। तो हिज अकेला आया तो पोजेसिव हो गया, और हिज फोन के साथ आया तो एडजेक्टिवल हो गया। क्लियर एवरीवन? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? सर पर है तो दोनों ही सही ना, या कोई सेम ऐसा है, है लेकिन कि ये रोल ज्यादा रोल अलग सही हो है? गया ना, रोल अलग हो गया ना। है तो सेम, काम एक ही कर रहे हैं, बट हुआ क्या है ना कि जैसे आपको एग्जाम, वही तो समझा रहा हूं ना मैं कि आप क्या कर रहे हो ना, दोनों को देखो। दिस इज माई बुक, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द नाउन बुक। समझ में आया? यस सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन प्योरली। ये फर्क है इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया? गॉट इट सर। तो यूज तो सेम ही है ना, लेकिन अगर एग्जाम में आपने लिख दिया कि दिस इज माइन बुक, क्या ये सही होगा गलत होगा? गलत हो। गलत होगा, ये एरर है। ये सही है, ये एरर है, तो इसको आपको माई से यूज करना चाहिए। दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज देयर बुक, दिस इज इट्स बुक। भाई कुत्ते बिल्ली का भी बुक हो सकता है ना, अजीब सा लगता है लेकिन हो सकता है। समझ में आ गया सबको? आपको एग्जाम्पल दूं मैं, आप मजेदार देखो अभी। सम बॉयज आर लेट, ये क्या है सम? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलोगे इसको आप? डिटर्मिनर है ना? यस और नो? कैन आई से इट्स एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव टू द नाउन बॉयज? यस और नो? यस सर। एडजेक्टिव ही बोलूंगा इसको मैं, क्या बोलूंगा और? सम बॉयज आर लेट। अब इसको पता है क्या बोला जाता है ग्रामर ग्रामर टर्म्स में? डिटर्मिनर। यानी ये नाउन का नंबर डिसाइड करता है। समझ में आया? क्या करता है डिसाइड? ये नाउन का नंबर। सम बॉयज आर लेट, मेनी बॉयज आर लेट, few boys are late. Did you understand now कि ये कैसे काम करता है? So it is basically a determiner which is acting like an adjective or a kind of an adjective. Are we clear now? जो भी चीज नाउन के पहले आती है वो एडजेक्टिव बन जाती है, सीधा सीधा। You can classify that into very categories, but primarily some is acting like an adjective. ठीक है? Here are the books. Some are in the bag. Here are the books. Some are in the bag. Some are left in the bag. ये सम क्या है? क्या ये सम और ये सम सेम है? नहीं, ये प्रोनाउन है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये अकेला आया है। किसको रेफर कर रहा है? बुक्स को रेफर कर रहा है ना। और ये सम है, लेकिन सम किसको किसके साथ आया है? बॉयज के साथ आया है, तो ये बन गया एडजेक्टिवल। ठीक है? टेकिंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, इट इज रेफरिंग टू नाउन्स एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ प्रोनाउन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? सम आर लेफ्ट इन द बैग, सम क्या है? ये बुक्स है, तो ये प्रोनाउन बन गया। सम बॉयज आर लेट, सम क्या है? नंबर की बात कर रहा है, बट ये बॉयज के साथ इसलिए एडजेक्टिव बन गया। क्लियर टू यू द डिफरेंस? यस और नो? यस सर।
ठीक है, आता नहीं है सब, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। ये कहाँ यूज करते हो, रिफ्लेक्सिव कैसे यूज होगा, कोई बताएगा मुझे? व्हेन टू यूज द रिफ्लेक्सिव, इन व्हाट केसेस you use the reflexive? Understand, you use the reflexive only in two cases. It's very simple. The first case is कि सब्जेक्ट भी आप हो, ऑब्जेक्ट भी आप हो। आई स्लैप माई फ्रेंड, बट मान लो आपने अपने आप को झापड़ मारा, तो आप क्या बोलोगे? आई स्लैप myself. माई सेल्फ। When the subject receives the action, it always is reflexive. Virat Kohli hurt himself. We slapped ourselves. हाँ, we slapped ourselves, मतलब हमने सबने अपने आप को झापड़ मारा। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होता है? एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? यू वांट टू स्ट्रेस ऑन समथिंग, सो बिकॉज यू आर एम्फेसाइजिंग यू यूज द रिफ्लेक्सिव। कैसे? आई माई सेल्फ वेंट देयर। तो जैसे कि आप बोलोगे कि लास्ट वीक होता नहीं कि भाई लास्ट ही लास्ट वीक some guests were coming to my place, and I myself went to pick them at the station. Did you understand? Some guests were coming to my place. I myself, मतलब मैं खुद गया था, कोई और मेरे साथ नहीं गया था। Emphasize करने के लिए हम myself, yourself ये सब यूज करते हैं। I myself have designed this product. तो आपने कुछ जबरदस्त चीज किया, कोई और आपको हेल्प नहीं किया, मैंने आके देखा, मैंने कहा यार ये कहाँ से बनवाया है, तो आपने कहा अरे सर क्या बात कर रहा है, I myself did this. To show that you have not got help from anyone. So you would have said I have done this, but आपने क्या कहा? I myself have done this. What is the difference between I have done this and I myself have done this? When you say I have done this, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपने कहा I myself have done this, that means it is a surprise element. आप emphasize कर रहे हैं कि भाई देखो, आपको लग रहा हो किसने हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया मेरा, मैंने खुद नहीं किया है। Did you understand now reflexive कैसे यूज करते हैं? When the subject is itself receiving the action it has taken, that is known as reflexive. So I hurt myself, they killed themselves, we all love ourselves. और होता है emphasize करने के लिए। तो ये आप देखोगे पूरे चार्ट को, तो this chart has become very simple now. So we are in the final stages of the discussion. This is used in two cases: when the subject is receiving the action it has taken, or when you want to emphasize. This is used when you are showing possessive without any noun ahead of it. This is used when the pronoun is the object, not the subject. This is used when the pronoun is the subject, not the object. And this is used when the pronoun is acting like an adjective. तो ये पांचों केसेस आपको क्लियर हो गए। So, हाँ, so I cooked food for myself या for me? फॉर माई सेल्फ होगा। ठीक है। आई कुक द फूड फॉर माई सेल्फ। आप लोग बोल सर व्हाई नॉट आई कुक द फूड फॉर मी? हाँ, खुद ही हो ना, खुद ही कुक किया, खुद के लिए किया है, तो माई सेल्फ यूज करो, मी मत यूज करो। हाँ, शी हैज कुक्ड फॉर मी। Yes. Okay, sir. क्यों मालूम है क्या? अब मजे की बात देखो क्या होगा। शी हैज कुक्ड फॉर हर, कंफ्यूजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मम्मी भी खड़ी है, आंटी भी खड़ी है, तो आपने कहा शी हैज कुक्ड फॉर हर, तो मैं क्या सोचूंगा कि मम्मी हैज कुक्ड फॉर आंटी। अगर मम्मी ने खुद के लिए किया है तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं शी हैज कुक्ड फॉर herself. herself. So that is giving me clarity. So when I say that she has cooked for her, ऐसा लग रहा है कि she एक बंदी है, cooked जो बनाया है, she एक बंदी जिसने बनाया है, किसी और के लिए बनाया है। जैसे भाई घर पे आपके मेड आती है, खाना बना के जाती है, तो आपने क्या बोला? द मेड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, शी हैज कुक्ड फॉर हर। हर मतलब कौन? मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी माता जी भी हो सकती हैं। बट अगर आप बोलोगे शी हैज कुक्ड फॉर हरसेल्फ, मतलब क्या मेड ने खाना खुद के लिए बनाया, खुद ही खा के निकल जाएगी। सो आई हैव कुक्ड फॉर माई सेल्फ रादर देन मी, ये सही होगा। अगर आपने मी यूज किया, समझ में आता है खुद के लिए बनाया, बट वो एरर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन नाउ? प्रोनाउंस की Yes. वेराइटीज कैसे? अब ये सब इतना मैंने पढ़ाया है, कुछ काम वाम में नहीं आएगा, बट मान लो कहीं पर प्रोनाउन दिख गया तो आपको समझ में आना चाहिए बॉस, इज इट राइट और रॉन्ग, बिकॉज प्रोनाउंस में अक्सर एरर आते हैं।
ठीक है, सर अब हुए ट्रांसफर इट इज आई देंगे, कौन सा इट इज? इट इज आई देंगे, हु इज इट का आंसर। हाँ, आप तो इट इज आई देना चाहिए भाई, सही है वो, एक्चुअली वो लगता है अजीब सा है। अरे भाई पता है क्या होगा आपको, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पे आया मैं, तो आपके बचपन की फोटो देखी टेबल पे पड़ी हुई थी, 3-4 साल की, अब पहचान तो नहीं पाऊंगा ना कि यार तुम ही हो वो, तो मैं क्या पूछा, अरे यार हु इज दिस, मैंने क्या पूछा, हु, क्वेश्चन तो हु से आया ना भाई, छोटी सी फोटो पड़ी है टेबल पे, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, तो मैं बोलूंगा हु इज दिस, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे क्वेश्चन तो हु से आया है ना, तो बोलोगे सर इट इज आई। इट इज भी बोलने की जरूरत नहीं, हु इज दिस, आई। हु है तो आई होगा ना, हु है तो आई होगा, हु है तो शी होगा, ही होगा। अब बट आप नहीं हो, पापा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा हु इज दिस, तो आप बोलोगे ही, पापा है ना, ही बोलोगे ना, कि हिम बोल दोगे, पापा को ही बोलोगे, खुद को मी बोलोगे, वाह। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब पापा सामने बैठे हैं, तो आपने बोला हु इज दिस, तो आपने बोला ही, माय फादर। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यूज यस सर। Yes, sir. गलत यूज होता है, इससे इसको लेके पागल मत हो जाना, ठीक है? एग्जाम में आता नहीं है सर, आ भी गया तो फालतू चीजें हैं, बट दिस इज हाउ वी मेक मिस्टेक्स, एंड ग्रामेटिकल एरर्स आते रहते हो, फिर वो आज से 6-7 साल में एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो, चलो ये कोई गलती नहीं है, चलो चलो, एनीवेज बाय। ठीक है, आई विल शेयर द प्रोनाउंस शीट ऑल्सो, आई विल ट्राई टू गिव यू सम एक्सरसाइज, ठीक है? सो आई मीन अ हरी पीपल, आई विल जस्ट लीव क्विकली है, थोड़ा सा काम है। थैंक यू सर। मिलता हूँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ग्रेट्स।